This call is now being recorded. Good afternoon. On behalf of General Engineering Department of Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, I welcome our today's expert, Dr. Purushottam Shobne, Assistant Professor, Department of Applied Mathematics, Rajiv Gandhi College of Engineering and Research, Nagpur, for the AICTE sponsored Prerna Scheme GATE Lecture Series. Our honorable expert of today's session is having 25 years of experience. Sir has published so many research papers in national and international journals and conferences. So I would like to welcome Dr. Shobne sir and start with today's session. Over to you, sir. Thank you very much, Madam. Pranjali, Madam. Good afternoon, students. Now, I will start lecture with webcam. Okay. Thank you. प्रांजलि मैडम येस सर. मेरी आवाज आ सर इको होतो आहे. हा, तो एक ऑडिओ मिनिट. ऑफ कराल सर. इको होतो आहे. ठीक आहे ठीक. आता ठीक आहे मॅडम. हो सर ठीक आहे. ओके, स्क्रीन दिसते का? थोडीशी मध्ये ब्लर होते आहे सर. बर, एक मिनिट. मी थोडं सेटिंग. ओके सर. ठीक आहे ना? हो हो. मी थोडं अजून खाली घेऊ का? फोकस करू याला? नाही सर ठीक आहे. ठीक है. ओके. ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. मेरी आवाज आ रही मैडम अच्छे से? येस सर येस सर. ओके, कोई इको वगैरह नहीं है ना? Students, see, the probability is my topic, probability and distribution. I'll just introduce what is, how to find the probability. But before that, what is experiment? For example, tossing of a coin. If single coin is tossed, then sample space S. Sample space means possible sample points. If one coin is tossed, then either head will come up or tail will come up. So here the experiment is tossing of a single coin. If two coins are tossed, then sample space S will contain 4 sample points. HH means both the coins will show head. First head, second tail, first tail, second head, or there is TT, this possibility also. So there are 4 possibilities. So here the number of sample points in sample space S is 4. You can write n of S equal to 4. Similarly, if 3 coins are tossed, there will be 2 cubes, means 8 sample points. Okay, so this is just a revision. Okay, let us take another example of experiment. Suppose that die is thrown, cubical die. Cubical die will have 6 faces and will have the points on it. 1, 2, 3, like these 6 faces are there. So here sample space will have 6 sample points, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here n of s equal to 6. So tossing or tossing of a die is an experiment. Similarly, if two dice are thrown, in that case,
there will be 36 sample points. Sample space S will contain pair 1 1, 1 2, in this way 1 6. Then first die will show 2, second will show 1, 2 2. In this way we will have 2 6 and so on. 6 1, 6 2, 6 3, finally 6 6. So here sample space S contains 36 sample points. So here the experiment is tossing of 2 dice. Okay. Let us discuss the example of cards. If one card is drawn from a pack of well shuffled cards, see, we have some typical terms in the problems of probability. Well shuffled means every card will have equal chance. Okay. So if one card is drawn out of 36, out of 52 cards, so it can be drawn in 52 C1 ways. And this is nothing but 52, and therefore number of sample points in sample spaces will be 52. So here the experiment is drawing a card from a well shuffled pack of cards. देखो कॉइन के भी प्रॉब्लम में ये लिखा रहता है कि फेयर कॉइन इज टॉस. व्हाई फेयर? बिकॉज देयर मस्ट बी इक्वल चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल. क्योंकि सिंगल कॉइन जब हम टॉस कर रहे हैं तो 2 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, दोनों के चांसेस सेम होने चाहिए और ये तभी पॉसिबल होगा इफ द कॉइन इज फेयर. आप जरा याद करो, अगर आपने शोले फिल्म देखी होंगी, द कॉइन यूज in that film is not a fair coin because that coin was showing head. दोनों साइड हेड था, तो टॉस करने के बाद हेड ही आएंगे ना, राइट? तो दैट कॉइन वाज नॉट फेयर. ओके. डाई भी जो है वो क्यूबिकल है, ठीक है ना? सो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग numbers from 1 to 6. Next, this is about sample space and experiment. Now suppose that we have 2 events. What is event? Event is nothing but the subset of sample space. For example, ये अगर हम sample space consider करते हैं tossing of 2 coins, तो यहाँ हम अलग अलग इवेंट डिफाइन कर सकते हैं. मान लो टॉसिंग 2 coins are tossed, therefore sample space S will contain 4 sample points, namely HH, HT, TH and TT. Now I will define event. Event is nothing but subset of sample space. तो देखो, मैं अगर इवेंट बोलता हूँ, लेट कैपिटल A be the event. Event of getting one head, यानी कम से कम नहीं, एक हेड मिलना चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड. तो यहाँ पर इवेंट ए में 2 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, एच टी, ये एक सैंपल पॉइंट रहेगा और दूसरा रहेगा टी एच. यहाँ एग्जैक्ट वन हेड है. बट इफ आई से लेट कैपिटल बी बी द इवेंट of getting at least one head. एटलीस्ट वन हेड बोला तो कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा रह सकते हैं. तो ये केस में इवेंट बी में कौन से पॉइंट्स रहेंगे? कम से कम एक हेड चाहिए. अब ये 2 हेड वाला भी चलेगा, आप एच टी चलेगा, टी एच चलेगा, लेकिन टी टी नहीं चलेगा बिकॉज हियर वी डू नॉट हैव एनी हेड. तो व्हाट इज
See, this set B is nothing but subset of sample spaces. Set A जो है event A, ये भी subset of sample space है. Okay. Now we will define the probability. Suppose we want probability of event A. Naturally, A will be subset of sample spaces. So what is the formula for calculating probability of event A? This is given by n of A, means number of sample points in event A divided by number of sample points in sample space S. अब अगर मैं ये इवेंट की बात करता हूँ, ये पहला वाला एग्जांपल जहां पर मैंने दो यानी हमने 2 पॉइंट्स टॉस किए हैं, n ऑफ s इक्वल टू 4 है, लेकिन मेरी इवेंट क्या है? A be the event of getting one head. One head means other will be definitely 10, exact one head. तो अगर मुझे ये निकालना है तो how many sample points are there in event A? 2. So 2 divided by number of sample points in sample space is 4. So this probability is 1 by 2. Now if you want to calculate the probability of this event, यहाँ पर देखो, we want probability of getting at least one head. तो सेकंड प्रॉब्लम जो है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? देखो, ये मेरी जो बी इवेंट थी ये एटलीस्ट वन हेड वाली थी, तो यहाँ पर 3 सैंपल पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट एस. तो बी में टोटल 3 पॉइंट्स है और सैंपल स्पेस एस में 4 पॉइंट्स है, तो 3/4. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. नेक्स्ट we will discuss the axioms of probability. What are the axioms of probability? See, you are appearing for GATE examination, so you should know the axiom. See, if S is the sample space and capital A be any event in S, अगर S sample space है और A जो है वो event है sample space S में, definitely event set will be subset of sample space. Then what are the actions? First action is for every event A, event capital A, 0 will be less than or equal to probability of A less than or equal to 1. See, probability is non-negative. Non-negative बोला तो 0 रह सकती है probability, लेकिन नेगेटिव नहीं रहेंगी. एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1. प्रोबेबिलिटी कैन नेवर एक्सीड 1. अगर कहीं पर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा आता है तो वो गलत है, ये समझ में, ये ध्यान में रखो आप. तो दिस इज द एक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सेकंड थिंग, प्रोबेबिलिटी अगर हम सैंपल स्पेस एस की निकालते हैं, देखो यहाँ पर इवेंट के जगह पर मैंने पूरी सैंपल स्पेस लिया है, तो दिस इज इक्वल टू यू विल हैव 1. व्हाई 1? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन एस? देखो, अगर मुझे पी ऑफ एस निकालना है तो मेरा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बोलता है देयर विल बी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस या इवेंट एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेसेस. दोनों सेम है तो ये बनाएंगे. ओके. नेक्स्ट एक्शन, इफ A and B are mutually exclusive, events, then देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी क्या? अगर मान लो ये मेरी सैंपल स्पेस है, यहाँ पर 2 इवेंट्स है, ये एक ए इवेंट और ये मेरी बी इवेंट. See, we do not have any common element, यानी यहाँ पर इंटरसेक्शन जो रहेगा वो एम्प्टी रहेगा. ओके. So what is the addition theorem? It is P of A union B. Union का मतलब points in A or points in B
or points in both. So addition theorem says P of A union B is given by P of A plus P of B plus P of, sorry, minus P of A intersection B. ये हमारा एडिशन थ्योरम है. ओके, अब अगर हमारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन व्हाट विल हैपन, इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी. इन दोनों इंटरसेक्शन बोला तो अगर सिचुएशन इस टाइप की, ये हमारा ए सेट और ये बी इवेंट है, इवेंट बी, ये जो पार्ट है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0. और ये 0 आने की वजह से ये जो फार्मूला है इसमें हम इंटरसेक्शन के लिए 0 रखेंगे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यानी अगर ये सिचुएशन है और यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यूनियन मीन्स व्हाट, यूनियन मीन्स ये पूरा, यहाँ पर सारे पॉइंट्स ए के आएंगे, सारे पॉइंट्स बी के आएंगे, कॉमन पॉइंट्स दोनों में कवर हो रहे करके इधर माइनस हो रहा है. ठीक है, तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं, यहाँ इंटरसेक्शन है लेकिन हम 0 है बोलेंगे, देयर आर एम्प्टी है करके बोलेंगे. एम्प्टी बोला तो देयर विल नॉट बी एनी एलिमेंट इन इंटरसेक्शन. In that case, if you want the probability of A union B, it is given by P of A plus P of B. So whenever A and B are mutually exclusive events, in that case, the probability of union can be obtained using this formula. But if the events are not mutually exclusive, means if situation is like this, ये हमारी A event और ये B है और हमको यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यूनियन बोला तो ये पूरा हो गया. तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, दोनों, यानी इसमें भी कवर हो गया, इसमें भी कवर हुआ करके एक बार माइनस हुआ. ठीक है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये 0 रहेगा. इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, दैट if A and B are independent. देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अब एक का पास होना दूसरे पे निर्भर नहीं करता. ठीक है ना, यानी इवेंट ऑफ ऑकरिंग ए डज नॉट डिपेंड अपॉन इवेंट ऑफ, सॉरी, ऑकरिंग ए डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑकरिंग ऑफ बी. ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट है. इसका एक अगर एग्जांपल देने का हुआ, दो बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो दे आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली. वो बात अलग है, आज बाजू के बच्चे की कॉपी में से दिख के लिख रहे, वो उसकी बात ही नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट फेयर थिंग्स. अगर फेयर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना ही नहीं हमने. इफ टू स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जामिनेशन तो दे आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली, तो इन दैट केस द प्रॉब्लम इज सॉल्व. How will you find probability of A intersection B in that case? और एक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ. मान लो एक टारगेट है और टारगेट को हमको शूट करना है. दो बंदे टारगेट को शूट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली. तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B will be given by probability of A into probability of B. ये एक आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज A and B are independent events. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ if A and B, if A and B are independent, then P of A intersection B will be P of A into P of B. Okay, next, I am starting random variable now. मैं पहले रैंडम वेरिएबल लूंगा. मैंने अभी केवल आपको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दी प्रोबेबिलिटी की. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ रैंडम वेरिएबल. नाउ व्हाट इज रैंडम वेरिएबल?
if a real value is assigned to each sample point of a sample space, then we have a random variable defined on that sample space. For example, let capital S be a sample space sample space. इसी एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस है. If a real number is assigned to each sample point of a sample space, then we have a function defined on that sample space. This function is known as random variable. And it is denoted by a capital letter, say capital X, capital Y, capital Z. It is denoted by capital letter X or Y or Z. Okay. Now let us take one example. For example, suppose 3 coins are tossed. Then sample space S will contain HHH, HHP, HPH. Total 8 sample points will be there. PHH, then HTT, PHP, then PTH and TTT. तो देयर विल बी 8 सैंपल पॉइंट्स. देखो ये किस फार्मूले से निकलता है. अगर एक कॉइन अगर हमने टॉस किया तो 2:1 इक्वल टू 2 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे. 2 कॉइन्स अगर टॉस किया तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे. 3 कॉइन्स अगर टॉस करते तो 2 क्यूब मीन्स 8 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे. क्योंकि एक कॉइन टॉस करने पे आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा. ठीक है. तो 2 क्यूब 8 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे अगर 3 कॉइन्स अगर टॉस करते तो. और ये सारे के सारे डिफरेंट है. अभी ये सैंपल स्पेस पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल गिवन बाय, मेरा फार्मूला है हेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स टेल. ये फार्मूला रैंडम वेरिएबल का है एक्स का. ऐसे लिखते बराबर यहाँ के हर एक सैंपल पॉइंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी. ठीक, ये अब यहाँ पर इंटीजर मिलने वाला है, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ. आई कैन टेक 3/2 ही, 3/4. तो फ्रैक्शन में भी वैल्यूज रह सकती है. ओके. तो यहाँ देखो सैंपल स्पेस को जैसे मैंने ये फंक्शन सैंपल स्पेस पे डिफाइन किया, ऐसी करते बराबर ये जो पहला पॉइंट है एच 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 तीनों हेड है, ये फार्मूले में रखो. 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 टेल नहीं है इसमें. तो 3 स्क्वायर इसको 9 नंबर मिलेंगे.
यहाँ देखो दो हेड है एक टेल है, तो हेड का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 टाइम्स टेल, टेल कितना है एक ही है, यानी 4 माइनस 3, इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा। अब यहाँ देखो हेड एक ही हेड है, दो दो टेल्स है, तो यहाँ फार्मूले में रखो तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, यानी 1 माइनस 6, यानी इसको -5 नंबर मिलेगा, इसको भी -5 मिलेगा, इसको भी -5 मिलेगा, क्योंकि एक हेड और दो टेल, यहाँ पर भी एक हेड दो टेल है। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ हेड 0 है, टेल कितने हैं 3, तो ये 0 रहेगा, -3 इंटू 3, यानी इसको मिल रहा है -9। तो अल्टीमेटली ये रैंडम वेरिएबल x कैसे लिखा जाएगा, रैंडम वेरिएबल इज अ सेट। अब अगर ये सेट है तो सेट में हम रिपीट नहीं कर सकते वैल्यू, तो देखो यहाँ सबसे लोएस्ट नंबर मैं -9 पहले लिख रहा हूँ, -5 लिख रहा हूँ, देन 1 एंड देन 9। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ये है हमारा रैंडम वेरिएबल, एंड रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग 4 वैल्यूज, 4 डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि जब सेट लिख रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज ही लिखना पड़ेगा, सेट में रिपीटेशन नहीं चलता। तो यहाँ हमने क्या किया है, वी हैव असाइन अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट। देखो यहाँ चाहे इंटीजर हो, ये डिपेंड करता है हमारे रैंडम वेरिएबल पे। अगर मैंने मेरा फार्मूला फॉर एग्जांपल सपोज दैट y बी दी रैंडम वेरिएबल, मैं दूसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ सेम सैंपल स्पेस पे, बी रैंडम वेरिएबल गिवन बाय y का फार्मूला दे रहा हूँ मैं, ये फंक्शन है हेड -3/2 टाइम्स 10। अगर इस तरीके से अगर मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो मेरा y जो रहेगा उसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो देखो हेड -3/2 टाइम्स 10, हाउ मेनी हेड, 9 हेड, तो 9 -3/2 इंटू 10, इसमें 0 है, यानी ये आ जाएगा 3, ये इसके लिए 3 वैल्यू रहेगी, इसके लिए क्या रहेंगी देखो, मैं फिर से सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ और वैल्यूज भी लिख रहा हूँ। हमारी सैंपल स्पेस में HHH है। अगर मैं रैंडम वेरिएबल ये फार्मूले से डिफाइन करता हूँ तो 3 हेड -0 10, तो 3 माइनस 0, यानी इसको 3 नंबर मिलेगा। HHT, यहाँ देखो एक टेल है, दो हेड है, तो 2 माइनस 3/2 इंटू 1, तो ये 2 माइनस 3/2 यानी 1/2 आ जाएगा, इसको 1/2 वैल्यू मिलेंगी, HTH को भी 1/2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। फिर THH को भी 1/2 वैल्यू आएंगी। फिर नेक्स्ट इज HTT। अब देखो यहाँ एक ही हेड है, एक हेड है और दो टेल है, यहाँ रखो एक हेड, तो 1 माइनस 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल हो गए, 1 -3, यानी यहाँ -2 आएंगा, इसको -2 मिलेगा, THT को भी -2 मिलेगा, -2 वैल्यू असाइन होंगी, TTH को भी -2। अब आखिरी रहेगा TTT, तो यहाँ पर 3 टेल है, 0 हेड है, तो 0 -3 इंटू 3 9/2, -9/2 वैल्यू आएंगी। तो देखो अगर हमने रैंडम अलग अलग रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं सैंपल स्पेस पे, तो हियर दिस कैपिटल Y विल हैव वैल्यू -9/2, एक आ रही वैल्यू, देन -2 आ रही है, 1/2 आ रही है और 3 आ रही है। So random variable is a function defined on sample space. So in this way you can define random variable. It is denoted by capital X or capital Y. Now there are two types of random variable. First is discrete random variable. Discrete random variable. I am using abbreviation random variable. ये commonly use होता है abbreviation. If random variable X is finite set
or countably infinite set. Countably infinite set. Then X is called, then X is discrete random variable. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो यहाँ पर मैंने टोटल n वैल्यूज ली है, फाइनाइट सेट है करके ये डिस्क्रीट है. या तो फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू, अगर मैंने 0 1 2 एंड सो ऑन बोला, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, ये सेट इनफाइनाइट है. सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, बट काउंटेबल. ये काउंटेबल है क्योंकि हमको पता है 2 के बाद 3 आने वाला है, 3 के बाद 4 आने वाला है. मैं अगर बोलता हूँ कि ये सेट का आखिरी नंबर 1 लाख है, तो आप बोलोगे नहीं, उसके बाद 1 लाख 1 है, फिर उसके बाद 1 लाख 2 है. तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं. ऑल्दो सेट इज इनफाइनाइट बट इट इज काउंटेबल. तो ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये दोनों भी डिस्क्रीट के एग्जाम्पल है. सेकंड वेराइटी इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. If capital X takes all real values from minus infinity to infinity, that is, if X is uncountably infinite, uncountably infinite, then X is continuous random variable. तब X को हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे. यहाँ पर जो X है वो सारी वैल्यूज लेता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक. मान लो यहाँ 1 है, सॉरी -1, -1/2 and so on, 0, 1/2, 1 and so on up to infinity. See, this is set of real number, इसको आप set of real number R बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर this set is infinite, ये भी तो infinite था, ये भी infinite है, but this is countable, this is uncountable. नहीं तो बताओ मुझे 0 के बाद कौन सा नंबर आता? What is the number next to 0? 0.1. अगर आप बोलते हैं 0 के बाद 0.1 आता है, तो व्हाट अबाउट 0.001? ये नंबर तो इसके बीच में है. तो 0 के बाद का नंबर क्या है हम नहीं बता सकते. 0.1 नहीं, 0.001 नहीं, 0.0000001 नहीं बोल सकते. तो यहाँ हम ये सेट को काउंट कर ही नहीं सकते, इसको काउंट कर सकते. तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, but this is countable, this is uncountable. So when capital X takes all real values from minus infinity to infinity, then that random variable is called continuous random variable. केवल 2 ही टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है. देखो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में डेट में आए हुए एग्जाम्पल लूंगा, है ना. समय तो बहुत कम है, 4 घंटे में प्रोबेबिलिटी की रिवीजन I don't know, but I will try. Okay, what is probability function? See, I will concentrate on discrete random variable. Okay, पहले इसके ऊपर हम concentrate करेंगे, फिर continuous random variable. So what is discrete random variable? Sorry, what is probability function? दो कंसेप्ट है, एक है probability function और दूसरा है distribution function. Probability function.
फंक्शन, और इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ एक्स से। लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू, मान लो मैं एक फाइनाइट सेट कंसीडर कर रहा हूँ, x1 x2 एंड सो ऑन xn, n वैल्यूज ली मैं। फाइनाइट सेट है इसका मतलब ये डिस्क्रीट है। ओके, मान के चलते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई इज एफ ऑफ एक्स आई, ये प्रोबेबिलिटी को एफ ऑफ एक्स आई बोलते हैं। देन ये देखो, ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को मैंने डिफाइन किया। देन स्मॉल एफ एक्स, small fx means probability at capital X equal to any x. This x will take any value from x1 to xn. Is called probability function of discrete random variable. Random variable. If number one, fx is greater than or equal to 0 for every x, यानी x की वैल्यू x1 लो, x2 लो, xn लो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एफ एक्स मीन्स व्हाट, इट इज प्रोबेबिलिटी एट पर्टिकुलर। तो ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी जीरो या जीरो से ज्यादा चलती है। एंड समेशन ऑफ एफ एक्स मीन्स सारे प्रोबेबिलिटीज की अगर एडिशन करते तो वो क्या होनी चाहिए, वन। तो स्मॉल एफ एक्स को प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं हम, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है करके इसको स्पेशल नाम है मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड मास फंक्शन। ये टर्म ध्यान में रखना है आपको। डिस्क्रीट के प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मास फंक्शन बोलते हैं, और कंटिन्यूअस के प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये टर्म्स गेट एग्जाम में यूज की जाती है, मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन बोल दिया कि समझ जाने का कि वेरिएबल कंटिन्यूअस है, मास फंक्शन बोला तो समझने का वेरिएबल डिस्क्रीट है। तो स्मॉल एफ एक्स को प्रोबेबिलिटी फंक्शन तब बोलेंगे जब सारी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होंगी और प्रोबेबिलिटी के एडिशन क्या होंगी, वन होंगी। नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि ये कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। ओके, जिसमें हम केवल स्मॉल एफ एक्स निकाल रहे हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल गिविंग द नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ हेयर पॉइंट। लेट capital X be a random variable giving number of heads in three tosses of hair coins. ठीक है, तीन कॉइन एट ए टाइम टॉस करो या एक कॉइन तीन बार टॉस करो, वन एंड दी सेम थिंग। तो हियर सैंपल स्पेस S will have 8 sample points, HHH, HHT, HTH, THH, HTT, then THT, TTH एंड TTT। ठीक है, ये हमारी सैंपल स्पेस S होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जरा टेबुलर फॉर्म में लिखूँ। अब इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा हर पॉइंट की। देखो, हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेंगी क्योंकि हर एक के चांसेस सेम है
ये 8 में से कोई तो भी एक पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, राइट। अब मैं एफएक्स यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो लिखना चाहता हूं, बट बिफोर दैट रैंडम वेरिएबल क्या है वो देखो। यहां पर x जो है क्या बोला है, x इज द रैंडम वेरिएबल गिविंग नंबर ऑफ हेड। मुझे बताओ ये सैंपल स्पेस में 0 हेड मिल रहा है, 0 हेड इसका मतलब तीनों के तीनों टेल, 1 हेड मिलेगा। देखो 1 हेड ये 3 पॉइंट्स में दिख रहा है, हो सकता है कि 2 हेड्स मिलेंगे, यहाँ 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 दिख रहे हैं, या हो सकता है कि 3 हेड रहेंगे। तो x हमारा जो है रैंडम वेरिएबल x बोला तो नंबर ऑफ हेड्स ऐसे बोला है। अब 3 कॉइन अगर टॉस करेंगे, मान लो तीनों कॉइन टी 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 शो कर रहे हैं, तीनों पे टेल दिख रहा है, इसका मतलब 0 हेड हो गया। या हो सकता है कि तीनों कॉइन पे क्या बोलते हैं हेड हो, तो फिर x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो रैंडम वेरिएबल की ये 4 वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू लिखते हैं, हर इसकी सेपरेट वैल्यू अगर लिखते हैं हम ये सेकंड रो में, तो यहाँ 3 हेड है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0। डेट लिखते वक्त रिपीटेशन नहीं करना है, तो 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज मिल रही 0, 1, 2 और 3। ये हो गया रैंडम वेरिएबल। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट स्मॉल इफेक्ट। तो देखो मैं यहाँ स्मॉल इफेक्ट हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, मैं लिखता हूँ लेट स्मॉल इफेक्ट दी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि फाइनाइट सेट है। दी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मैं हर रैंडम वेरिएबल के वैल्यू की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। यहां मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड? 0 हेड बोला तो हमको ये एक ही पॉइंट मिलेंगे जहां 0 हेड है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0? 0 की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल 8 पॉइंट्स है, उसमें केवल एक पॉइंट 0 दे रहा है वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 0 विल बी 1/8, एक ही पॉइंट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? तो 1 हेड हमको कहां कहां मिल रहा है, एच टी 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 एच टी 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 एच, ये तीनों पॉइंट में 1 हेड मिल रहा है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स है 1 हेड वाले? 3 पॉइंट। तो आउट ऑफ 8 3 यानी 3/8, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? तो 2 हेड वाले 3 पॉइंट है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आएंगी 3/8। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड? एक ही पॉइंट है जहां पर तीनों हेड मिल रहे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेंगी 1/8। नाउ सी दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन बिकॉज all probabilities are non-negative, and what is sum of all probabilities? सारे probabilities की total देखो 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8, and this is equal to we get 1. Since these two criteria are satisfied, all probabilities are non-negative, and sum of all probabilities equal to 1, and therefore this effect is probability function. Small effect is probability function. Okay, next distribution function क्या होता है? See, I am concentrating on discrete random variable only. तो मैं discrete का probability function यानी mass function आपको बता दिया। अब मैं distribution function की बात कर रहा हूँ। Distribution function of discrete random variable, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को स्मॉल एफ और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ। सी प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आने की वजह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मत बोलना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफरेंट।
और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। दो अलग अलग टर्म को जोड़ के नया वर्ड नहीं बनाने का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो स्मॉल एफ एक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला तो कैपिटल एफ एक्स, एंड देयर इज नो टर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऐसी कोई टर्म नहीं है वहां, राइट। अब इसका फार्मूला देखो, क्या नोटेशन है कैपिटल एफ एक्स, it is given by capital Fx equal to probability when capital X is less than or equal to small x. ये डेफिनेशन नहीं है, दिस इज अनदर सिंबल फॉर दिस। यानी कैपिटल एफ एक्स में सारी प्रोबेबिलिटी जो होती है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ यू। ये यू जो रहेगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये है डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यानी यहां अगर x की वैल्यू x2 लिख दी मैंने, फॉर एग्जांपल मान लो x इक्वल टू हमारा सेट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, एन वैल्यूज है, फाइनाइट सेट है करके डिस्क्रीट है। तो अगर मुझे f ऑफ x2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो x के जगह पे x2 है, यहाँ x2 है, तो x2 और उससे छोटे जो नंबर्स है उनके प्रोबेबिलिटी की एडिशन। तो x2 और x2 से छोटे, एक x2 और एक x1, यानी यहाँ दो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, x1 की और x2। अगर मुझे f ऑफ x3 चाहिए तो x3 तक यहाँ मैं x3 रख रहा हूँ, तो x3 और x3 से छोटे जितने भी वैल्यूज होंगी उनके प्रोबेबिलिटी की एडिशन। तो x3 और x3 से छोटे टोटल कितने मिल रहे हैं, 3। तो यहाँ पर रहेगा एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3, तीन प्रोबेबिलिटी रहेगी की एडिशन रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा एक फार्मूला दे रहा हूँ कि अगर आपको कैपिटल एफ एक्स चाहिए, देखो इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। ये कैपिटल एफ एक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। आपको याद होगा क्यूमुलेटिव अटेंडेंस का क्या मतलब होता है, पिछले महीने के अटेंडेंस में इस महीने की ऐड हो जाएंगी, फिर अगले महीने की उसमें ऐड हो जाएंगी, फिर उसके अगले महीने की ऐड हो जाएंगी, ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कैपिटल एफ एक्स जो है ये मैंने सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकाला, ठीक है ना। लेकिन इसको निकालने का मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। हमारा x जो है वो n वैल्यूज ले रहा है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। अब कैपिटल एफ एक्स कैसे रहेगा, देखो ये डेफिनेशन हमेशा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के रेंज में लिखी जाती है। ऑल्दो देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, लेकिन कैपिटल एफ एक्स की डेफिनेशन हमेशा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखी जाती, वेरिएबल डिस्क्रीट रहे या कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखो x1 के पहले कोई वैल्यू नहीं है तो प्रोबेबिलिटी जीरो रहेंगी, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन x1। मैंने x1 नहीं पकड़ा इसमें, x1 से छोटे नंबर है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी, ठीक है। जैसे ही मेरा कैपिटल एक्स x1 वैल्यू लेगा कहां तक, x2 के पहले, x2 नहीं पकड़ा मैं, केवल यहाँ x की वैल्यू x1 आई है तो यहाँ पर रहेगा एफ ऑफ x1। फिर अगर हमारा x2 वैल्यू लेता है, ले लिया x2 वैल्यू बट लेस देन x3, x3 इज नॉट टेकन, तो अभी मुझे बताओ मेरा x जो है वो दो ही वैल्यू ले रहा है, x1 और x2, तो यहाँ पर एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे तो फाइनली वी विल हैव एक्सएन। ये एक्सएन पे हमारा सेट खत्म हो जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन मैंने पहले ही बोला माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के रेंज में लिखनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो x जो है एक्सएन तक है, ये जितने भी एक्सएन और एक्सएन के पहले जितने भी नंबर थे उनके प्रोबेबिलिटी की एडिशन।
So here you will have f of x1 plus f of x2 plus and so on. Finally, you will also add the probability of xn, and this is nothing but 1. तो कभी भी कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू 0 स्टार्टिंग वैल्यू रहती है, एंड वैल्यू 1 रहती है, और ये डेफिनेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के रेंज में लिखी जाती है, चाहे आपका सेट फाइनाइट क्यों ना हो। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स, और देखो व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 0 में एफ ऑफ एक्स वन ऐड होके एफ ऑफ एक्स वन मिला, फिर एफ ऑफ एक्स वन में और एक प्रोबेबिलिटी ऐड होगी तो ये मिला, ऐसी एडिशन होती जाएंगी प्रोबेबिलिटी में। जब सारी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी फाइनल वैल्यू वन मिलेगी। ठीक है, तो ये कैपिटल एफ एक्स हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि हाउ टू फाइंड स्मॉल एफ एक्स, हाउ टू फाइंड कैपिटल एफ एक्स। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया इसके पहले, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड स्मॉल एफ एक्स। अब अगर मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर चाहिए कैपिटल एफ एक्स, मैं यहीं पर साइड में बना रहा हूँ। अगर मुझे कैपिटल एफ एक्स अगर चाहिए तो देखो, मैंने पहले ही बोला कैपिटल एफ एक्स की डेफिनेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लिखनी पड़ती है। मुझे बताओ ये जीरो के पहले कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो बोलूंगा। तो ये जीरो वैल्यू कहां से कहां तक चलेंगे? माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो के पहले तक, क्योंकि इसमें जीरो कवर नहीं हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी आएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही मेरा एक्स जीरो वैल्यू लेंगे, देखो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, कहां तक? अप टू नेक्स्ट नंबर। लेकिन ये पकड़ा नहीं है, वन नहीं पकड़ा। एक्स क्या है? केवल जीरो है, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी वन बाई यहाँ आ जाएंगी। फिर जैसे हमारा एक्स वन वैल्यू लेगा, कहां तक? बिफोर टू, टू के पहले। तो एक्स इक्वल टू वन और जीरो, ये दो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ रहेगा वन बाय एट प्लस थ्री बाय एट, यानी ये हो जाएगा फोर बाय एट। यानी वन बाय एट में थ्री बाय एट ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो जाएगा, फिर ये ऐड हो जाएगा और इक्वल टू वन मिलेगा। जैसे मेरा एक्स टू वैल्यू लेगा बिफोर थ्री, तो यहाँ पर ये जो पहले वाली दो प्रोबेबिलिटी है यानी फोर बाय एट में अब क्या ऐड होने जा रहा है? ये टू की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, तो थ्री बाय एट और ऐड हो जाएंगे, दिस विल बिकम सेवन बाय एट। और जैसे ही मेरा एक्स थ्री वैल्यू लेगा, अब थ्री पे मेरा टेबल खत्म हो रहा है, लेकिन ये चलेगा अप टू इंफिनिटी बोलना पड़ेगा। इसका मतलब थ्री के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। जीरो के पहले भी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। चाहे हमारा सेट फाइनाइट क्यों ना हो, इसके पहले नंबर नहीं है, इसके पहले वाले नंबर नहीं है, या है लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? जीरो है। एफ एक्स की वैल्यू जीरो। थ्री के बाद वाले नंबर नहीं है, लेकिन है अगर बोलते हैं हम तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। तो जैसे ही मेरा एक्स फ्री वैल्यू ले लेगा, तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये पहले की एडिशन सेवन बाय एट आई है, उसमें और एक ये वन बाय एट ऐड हो जाएंगी, थ्री की प्रोबेबिलिटी, एंड दिस विल बिकम वन। तो हमेशा कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर वन तक होती है और रेंज बाकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होती है। ठीक है, तो आज मैं केवल डिस्क्रीट के को दो डेफिनेशन मैंने कवर की है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मास फंक्शन बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि ये कॉमनली यूज होती है टर्म गेट के एग्जाम में। फाइंड व्हाट इज द मास फंक्शन। मास फंक्शन बोला तो स्मॉल इफेक्ट। ठीक है, किसका स्मॉल इफेक्ट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। ओके, तो चलो बेटा, ये पार्ट के ऊपर अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हेलो, एनीबडी इज हैविंग डाउट? Students, if you are having any doubts related to this topic, so you can ask. Okay, क्या thank you so much, sir. हाँ मैडम, जस्ट मिनट, क्या आपको ये समझ में आया? क्या कोई कोई स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्ड कर सकता है? ये कंसेप्ट समझ में आ गए क्या? देखो ये सब आप पढ़ चुके हो इससे पहले, दिस इज जस्ट रिवीजन।
ठीक है ना, मैं गेट में आए हुए एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, तब मेरी स्पीड कुछ और रहेगी। अभी थोड़ा कंसेप्ट है करके मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, फिर भी फास्ट हूँ, आई नो, बट यू ऑलरेडी स्टडीड दिस कंसेप्ट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दोज कंसेप्ट। ओके, तो लेट अस होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लूंगा, और उसके बाद में फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस्ड रूल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much for sparing your valuable थैंक यू time मैडम। with our students. लेकिन बच्चों को समझ में आया बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, बच्चे मैसेज पे रिप्लाई कर रहे हैं। ओके ओके, बट मेरे ख्याल से मेरे चैट बॉक्स में कुछ नहीं है फिलहाल। हाँ, Sir, दिख रहा है। after completing this session, we will ओके take ओके feedback from students, sir. ओके मैडम, ओके ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच मैडम। Thank you ओके so much, sir. बॉयज, tomorrow we will join again. Thank you.